Today we are going to read lesson number 15 and the name of this lesson is Helen Keller. तो बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 15 और इस पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है हेलन केलर। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इस पाठ को हम लोग रीड करेंगे, लेसन की रीडिंग करेंगे और उसके बाद फिर डिफिकल्ट वर्ड्स और मीनिंग जाएंगे, नोट करेंगे और लास्ट में इस लेसन की हिंदी मीनिंग को समझेंगे। चलो तैयार हो जाओ और अपनी अपनी बुक को ओपन करो। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 15 और हम जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहा हूँ, मेरे इस चैनल पर पहली बार आया हूँ, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाए। ओके, चलो अपनी अपनी बुक को ओपन कर। मैं रीडिंग करूंगा पहले और आप लोग अपने अपने बुक में ध्यान से देखोगे। तैयार सभी? चलो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 15 हेलन केलर। हेलन केलर। It was the summer of 1880. It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. One day, the baby fell ill. Her fever stayed high. The parents cried. The parents tried their best to help her get better. They were disappointed and said, "There is nothing more we can do. The baby may not live." Helen lived, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last, they found out what was wrong. The child was unable to see and hear. The baby grew up. Her parents felt sorry for her. Though Helen could not see and hear. Though Helen could not see and hear, she was a bright little girl. People thought Helen could not learn anything, but her mother did not agree. She always thought, how could they teach her? आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ पर आते हैं। Helen began to grow wild. She would not let anyone do anything for her. Her clothes were always dirty. She was often
angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Her parents soon found a teacher for her, Miss Sullivan. Miss Sullivan, a young teacher, promised to help Helen Keller to see the world. मिस सुलीवान, सलीवान भी पढ़ सकते हैं, सुलीवान भी पढ़ सकते हैं। अब एस यू से सू भी होता है, सा भी होता है। मिस सुलीवान गेव हेलन अ डॉल। शी spelled the word doll with her fingers on Helen's hand. She made the letter with special hand signs. Helen copied her teacher and spelled doll, but did not understand what she was doing. The teacher helped Helen to spell a lot of words. One day, the teacher made Helen put her hand into running water. She spelled water. Helen understood that water meant something wet. Running over her hand, she understood that words were not the most important things in the world. Words could tell her everything she wanted to know. Helen Keller became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. ओके, यहाँ तक मैंने एक रीडिंग कर दी है। अब एक बार और रीडिंग करेंगे, थोड़ी सी फास्ट रीडिंग होगी। उसने मिस कर दिया हो, कोई वर्ड जिसका ना समझ में आया हो, एक बार फिर से रीडिंग करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। ठीक है, एक बार फिर से अपनी बुक पे ध्यान से देखो। चलो शुरू करते हैं एक बार फिर से रीडिंग। थोड़ा फास्ट रीडिंग करेंगे, ध्यान से देखना सभी, ठीक है। हेलन केलर। इट वॉज द समर ऑफ 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. One day, the baby fell ill. Her fever stayed high. The parents tried their best to help her get better. They were disappointed and said, "There is nothing more we can do. The baby may not live." Helen lived, but she was not the same after her illness. Something is very wrong, her mother said. At last, they found out what was wrong. The child was unable to see and hear. The baby grew up. Her parents felt sorry for her, though Helen could not see and hear. She was a bright little girl. People thought Helen could not learn anything, but her mother did not agree. She always thought, how could they teach her? Helen began to grow wild. She would not let anyone do anything for her.
Her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. Her parents soon found a teacher for her. Miss Sullivan, a young teacher, promised to help Helen Keller to see the world. Miss Sullivan gave Helen a doll. She spelled the word doll with her fingers on Helen's hand. She made the letter with special hand signs. Helen copied her teacher and spelled doll, but did not understand what she was doing. The teacher helped Helen to spell a lot of words. One day, one day, the teacher made Helen put her hand into running water. She spelled water. Helen understood that water meant something wet. Running over her hand, she understood that words were the most important things in the world. Words would tell her everything she wanted to know. Helen Keller became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर रीडिंग खत्म होती है और एक दो बार आप लोग अपनी अपनी बुक में इसको रीड करना और ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देख लेना तो रीडिंग क्लियर हो जाएगी। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको नोट करेंगे। चलो अपनी कॉपी को निकालो और पेन को तैयार कर लो, हम लोग वर्ड मीनिंग लिखेंगे। Okay, dear students, now you will write all the difficult words of this lesson, Helen Keller. चलो हम लोग क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग नोट करेंगे। अपनी भी कॉपी और पेन तैयार करो और जितनी भी वर्ड मीनिंग्स हैं उसको नोट करो। हेडिंग डाल लो आप, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। वर्ड, प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग। पहला वर्ड है कौन सा, पहला वर्ड है हमारा समर। समर, समर, SUMMER, SUMMER, समर। समर मीन्स गर्मी, विंटर मीन्स जाड़ा और समर मीन्स गर्मी। विंटर मीन्स ठंडी होती है, जाड़ा होता है, ठीक है, और समर मीन्स गर्मी। और रेनी सीजन मीन्स क्या होता है, तीन सीजन होते हैं, समर, विंटर और रेनी सीजन। तो रेनी मीन्स बरसात का मौसम, समर मीन्स गर्मी और विंटर मीन्स सर्दी, ठीक है। तो SUMMER, समर, समर मीन्स गर्मी। नेक्स्ट हेल्दी, HEAL, टी ज्यादा है, टी नहीं लिखना है इसमें, टी गलत है, ठीक है, टी को नहीं नोट करना है। HEALTHY, HEALTHY, हेल्दी मीन्स क्या होता है, हल्दी नहीं होता है, हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ, ठीक है। हेल्दी को हल्दी से मत कनेक्ट कर देना, हल्दी अलग है, उसकी इंग्लिश टर्मरिक होती है, और ये हेल्दी, हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ। HEALTHY, हेल्दी, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। नेक्स्ट बेबी, BABY, BABY,
वाई, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा। नेक्स्ट, टाउन, टी ओ डब्ल्यू एन, टी ओ डब्ल्यू एन, टाउन। टाउन मीन्स कस्बा, टाउन मीन्स कस्बा। बॉर्न, बी ओ आर एन, बॉर्न, बॉर्न मीन्स जन्म, बी ओ आर एन, बॉर्न, बॉर्न मीन्स जन्म। पेरेंट्स, पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है? माता पिता, माता पिता, पी ए आर ई एन टी एस, पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स माता पिता। डियरली, डी ई ए आर एल वाई, डी ई ए आर एल वाई, डियरली, डियरली मीन्स प्यार से, प्रेम से। ठीक है। नेक्स्ट, नेम्ड, एन ए एम ई डी, नेम्ड, एन ए एम ई डी, नेम्ड, नेम्ड मीन्स नाम दिया, नामकरण किया। नामकरण किया, किसी को नाम देना, उसकी इंग्लिश हो गई नेम्ड। इल, एच आई एल एल, आई एल एल, इल, इल मीन्स बीमार, इल मीन्स बीमार। फीवर, एफ ई वी ई आर, एफ ई वी ई आर, फीवर, फीवर मीन्स बुखार, फीवर मीन्स बुखार। हाई, एच आई जी एच, एच आई जी एच, हाई, हाई मीन्स बहुत ज्यादा, ऊंचा, या बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज। वैसे बहुत तेज या बहुत ज्यादा, और वैसे हाई का मतलब क्या होता है? ऊंचा। लेकिन इस लेसन में जो हाई का मतलब है वो है बहुत तेज, बहुत ज्यादा। ठीक है। वैसे हाई का जनरल जो मीनिंग होती है उसका मतलब होता है ऊंचा। चलो नेक्स्ट, प्राइड, टी आर आई ई डी, टी आर आई ई डी, प्राइड, प्राइड मीन्स प्रयास किया, कोशिश किया। ट्राई होता है ना, ट्राई, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, कोशिश करना। कोशिश करना। और ये V2 है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है। ट्राइड पास्ट फॉर्म है, इसलिए कोशिश किया, प्रयास किया। ठीक। बेटर, बी ई टी टी ई आर, बी ई टी टी ई आर, बेटर, बेटर मीन्स बेहतर, बेहतर। नेक्स्ट, डिसअपॉइंटेड, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, ध्यान से लिखना। DISAPPOINTED, 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 disappointed मीन्स निराश हुए। अब अगर ये डिसअपॉइंट होता तो डिसअपॉइंट, डिसअपॉइंट मीन्स निराश होना। अब ये ईडी लग गया, इसमें ईडी लग गया, ठीक है, डिसअपॉइंटेड ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, V2 हो गया। तो डिसअपॉइंट में निराश होना, डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हुए। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। मोर, MORE, मोर, मोर मीन्स अधिक या ज्यादा, अधिक। डू, DO, डू, DO, डू मीन्स करना, डू, डू मीन्स करना, DO, डू मीन्स करना।
नेक्स्ट वर्ड है LIVE, लिव। LIVE, लिव मीन्स जीना। सेम, SAME, SAME, सेम मीन्स एक जैसा, एक जैसा। आफ्टर, AFTER, AFTER, आफ्टर। आफ्टर मीन्स बाद में। वैसे अब आगे क्लास में आप लोग जाओगे तो ये आप सीखोगे कि अगर आफ्टर लिखा है तो इस आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। इसको पढ़ते हैं हम लोग आफ्टर, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर। लेकिन अभी आप लोग क्लास 5 में हो तो ठीक है, और आगे वाले क्लासेस में आप लोग बोलोगे आफ्टर, बोलोगे तो लगेगा कि आफ्टर बोल रहे हो। ठीक है, सुनने में रा आता है लेकिन बोला नहीं जाता है। क्लियर? तो इसको आप लोग अगर अभी से प्रैक्टिस करो तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में। समथिंग, SOMETHING, SOMETHING, समथिंग। समथिंग है ये, ऊपर मात्रा नहीं रहेगी। समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ, समथिंग मीन्स कुछ। नेक्स्ट, रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत। अब इसका प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो करते हैं रॉन्ग। रॉन्ग केवल बोलते हैं, का प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। रॉन, रॉन हो जाता है, पर इसे रॉन्ग पढ़ लेते, रॉन्ग। गा बीच में रहता है। ठीक है, वैसे आप लोग रॉन्ग पढ़ो इसको, रॉन्ग। रॉन्ग मीन्स गलत। लास्ट में एट लास्ट, ATLAST, ATLAST, एट लास्ट। दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बना हुआ है, एट लास्ट। एट लास्ट मीन्स अंत में, अंत में। एवरीथिंग, EVERYTHING, EVERYTHING, एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, सब कुछ। नोट हो गया? आगे बढ़े, चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट कुछ और वर्ड्स हैं, इसको भी नोट कर लो जल्दी से। वांटेड, WANTED, वांटेड। वांटेड मीन्स चाहते थे, WANTED, वांटेड। वांटेड मीन्स चाहते थे। ये भी V2 है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वांट मीन्स होता है चाहना। ठीक। नो, नो, KNOW, KNOW, नो। नो मीन्स जानना। ठीक। बिकेम, BECAME, BECAME, बिकेम। बिकेम मीन्स हुए। बिकम इसका फर्स्ट फॉर्म होता है BECOME, बिकम मीन्स होता है होना। होना। फर्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है इसका फर्स्ट। कौन सा वर्ड है? फर्स्ट, FIRST, FIRST, फर्स्ट मीन्स पहला या प्रथम। DEAF, डेफ, DEAF, डेफ। डेफ मीन्स बहरा, जिसको सुनाई नहीं पड़ता है उसको बोलते हैं डेफ। जो सुन नहीं सकता उसको बोलते हैं डेफ।
और जो देख नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लाइंड, BLIND, BLIND, ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा, जो देख नहीं सकता है, जिसकी दोनों आंखें खराब हो, इसको दिखाई ना पड़े, उसको बोलते हैं ब्लाइंड। ओके। और लास्ट वर्ड कौन सा हमारा है? पर्सन, PERSON, PERSON, पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति। क्लियर? तो ये हमारा लेसन यहाँ पर फिनिश होता है। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने सारे लिखा दिए हैं, इसको नोट कर लेना अच्छे से और इसको याद कर लेना। ओके। और बाद में इसको याद करने के बाद अपने मन से जब लेसन को पढ़ोगे और उसकी हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करना। चलो, इसके बाद हम लोग एक बार फिर से बुक ओपन करते हैं और इस लेसन की हिंदी मीनिंग को देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से तैयार हो जाओ इस लेसन को पढ़ने के लिए, लेकिन इस बार हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे भी और इसकी हिंदी मीनिंग को भी समझेंगे। तो अपनी बुक को ओपन कर लो और ध्यान से सुनो और अपनी अपनी बुक में देखना भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग इस लेसन को पढ़ना और उसकी हिंदी मीनिंग को समझना। हेलन केलर, ये एक हेलन केलर नाम की बच्ची की कहानी है जो कि सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी। चलो देखते हैं क्या होता है। It was the summer of 1880, 1880 की गर्मी का दिन था। सन 1880 में गर्मी का एक दिन था। A healthy baby girl was born in a small town in अलाबामा। अलाबामा शहर में एक छोटे से कस्बे में अ हेल्दी बेबी, एक स्वस्थ बेबी गर्ल मतलब बच्ची, एक लड़की, छोटी बच्ची, बेबी गर्ल वॉज बॉर्न ने जन्म लिया। एक स्वस्थ बच्ची ने एक छोटे से कस्बे, अलाबामा के एक छोटे कस्बे में जन्म लिया। 1880 की गर्मी में, गर्मी का दिन था और एक स्वस्थ बच्ची ने एक छोटे से कस्बे में अलाबामा के जन्म लिया। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। उसके पेरेंट्स मीन्स माता पिता, लव मीन्स प्यार करते थे, हर मतलब उसे, उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर, और उसको नाम दिया, उसका नाम क्या रखा? हेलन केलर। उसके माता पिता ने, उसके सबके माता पिता नाम रखते हैं ना बच्चों का, तो उसके माता पिता ने भी अपने बच्ची का क्या नाम रखा? हेलन केलर। वन डे द बेबी फेल इल, एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, एक दिन क्या हुआ? द बेबी, वो बच्ची जो है, फेल इल मतलब बीमार हो गई। एक दिन वो बच्ची बीमार हो गई। हर फीवर स्टेड हाई, उसका जो बुखार था बहुत तेज हो गया था। फीवर मीन्स बुखार, उसका बुखार बहुत तेज हो गया था। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। पेरेंट्स थे उसके, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, ट्राइड देयर बेस्ट मतलब पूरी कोशिश किया। ट्राइड देयर बेस्ट मीन्स उन्होंने पूरी कोशिश किया, उसके माता पिता ने पूरी कोशिश की क्या करने के लिए? टू हेल्प हर गेट बेटर, उसको ठीक करने की पूरी कोशिश की। दे वर डिसअपॉइंटेड एंड सेड, वो बहुत निराश हुए। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश हुए। एंड सेड और बोले, बहुत निराश हुए और बोले, देयर इज नथिंग मोर, अब कुछ नहीं हो सकता।
वी कैन डू, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वी कैन डू, हम लोग जो कर सकते थे वो कर लिया, हम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ हो नहीं सकता। द बेबी मे नॉट लिव, बच्ची जो है हमारी अब जीवित नहीं रहेगी। इतनी तेज बुखार हो गया था उसको, उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसके माता पिता को लगा कि अब मेरी बच्ची जीवित नहीं बचेगी। आगे क्या होता है, चलो अगले पैराग्राफ में देखते हैं। हेलेन लिव्ड बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। एलन बच गई, लिव्ड मतलब जीवित हो गई, जीवित रही, वो बच गई। बट लेकिन शी वॉज नॉट द सेम, लेकिन वो वैसी नहीं रही। द सेम मतलब वैसी नहीं रही आफ्टर हर इलनेस, अपनी बीमारी के बाद वो वैसी नहीं रही जैसे कि पहले थी। बहुत तेज बुखार हो गया और उसके बाद वो अब जब ठीक हुई तो वो वैसी नहीं थी जैसे कि बीमार होने के पहले थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, समथिंग मतलब कुछ, जो है बहुत ज्यादा गलत था, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो गया था। हर मदर सेड, उसकी माता ने कहा, उसकी मम्मी ने कहा कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या है समझ में नहीं आ रहा है। एट लास्ट, अंत में, दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, अंत में उन्हें पता चला कि क्या गड़बड़ है, क्या गलत हो रहा है, क्या गड़बड़ी है। अंत में उन्हें पता चल गया। वो गड़बड़ी क्या थी? द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर, जो बच्ची थी, जो चाइल्ड थी, बच्ची थी, वॉज अनेबल असमर्थ थी, क्या करने में? सी मतलब देखने में, और हियर सुनने में, हियर में सुनना, सुनने में और देखने में असमर्थ थी, मतलब अंधी थी और बहरी थी। वो ना वो देख सकती थी, ना ही सुन सकती थी। क्लियर, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द बेबी ग्रीव अप, अब बच्ची बड़ी हुई। बच्ची, भाई बच्ची है तो बड़ी तो होगी, बच्चे बड़े तो होंगे ही समय के साथ साथ, चाहे आंखें हो चाहे ना हो, चाहे दिखाई पड़ता हो चाहे सुनाई ना पड़ता हो, कुछ भी ना हो तो भी बड़े तो होंगे ही ना। द बेबी ग्रीव अप, बच्ची अब बड़ी हो रही थी, बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता बहुत दुखी होते थे उसको, उसके लिए, उसके माता पिता उसके लिए बहुत दुखी थे। दो हेलेन कुड नॉट सी एंड हियर, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। दो मीन्स यद्यपि की, यद्यपि की हेलेन कुड नॉट सी, देख नहीं सकती थी, कुड नॉट मतलब सकती थी, कुड नॉट सकती थी, सी मतलब देखना और हियर में सुनना। यद्यपि हेलेन देख और सुन नहीं सकती थी, लेकिन शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो बहुत होनहार बच्ची थी, बहुत ही होनहार छोटी लड़की थी। ओके, पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, बट हर मदर डिड नॉट एग्री। पीपल थॉट, पीपल मीन्स लोग, थॉट मीन्स सोचते थे, हेलेन कुड नॉट लर्न, लर्न मीन्स सीखना, हेलेन कुछ नहीं सीख सकती, हेलेन कुड नॉट लर्न, लोग सोचते थे कि हेलेन कुछ भी सीख नहीं सकती थी, एनीथिंग मतलब कुछ भी। लेकिन बट मिस, लेकिन हर मदर उसकी माँ डिड नॉट एग्री, उसकी माँ उन लोगों से सहमत नहीं थी, उसको लगता था कि ये सीख सकती है। शी ऑलवेज थॉट हाउ कुड दे टीच हर, शी ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वो हमेशा सोचती थी कि कैसे उसे पढ़ाए, वो हमेशा उसको पढ़ाने के बारे में सोचती थी। हाउ कुड दे टीचर, वो कैसे उसे पढ़ा सके। समझ में आ रही कहानी? आगे बढ़े अब, चलो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगी रिपीट करके दोबारा देख लेगा, समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हेलेन बिगैन टू ग्रो वाइल्ड, हेलेन बिगैन मीन्स शुरू हुई क्या? ग्रो वाइल्ड, जंगली, वाइल्ड में तो जंगली होना होता है, लेकिन जिद्दी और चिड़चिड़ी होना शुरू हो गई। जब बच्चे कुछ समझ में नहीं आएगा उसे तो क्या होगा, चिड़चिड़ाएंगे ना, तो जिद्दी हो जाएंगे।
तो उसी तरह वो जंगली जंगली मतलब जंगल में रहने वाला जंगली नहीं, जैसे उनकी जिद्दी होना और चिड़चिड़ापन होना। हेलन धीरे धीरे जो बड़ी हुई तो वो जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई। शी वुड नॉट लेट एनीवन डू एनीथिंग फॉर हर। शी वुड नॉट लेट वो नहीं देती थी एनीवन किसी को भी डू करने को क्या एनीथिंग कुछ भी फॉर हर उसके लिए। वो किसी को अपने लिए कुछ भी करने नहीं देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उनके कपड़े हमेशा डर्टी रहते थे। डर्टी मीन्स गंदे। उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। वो प्रायः गुस्से में रहती थी। ऑफन मीन्स प्रायः। प्रायः मीन्स हमेशा। वो हमेशा प्रायः गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन lay on the floor and kicked her feet. समटाइम्स मतलब कभी कभी। शी इवन वो यहाँ तक कि ले लेट जाती थी। कहाँ? ऑन द फ्लोर, जमीन पर लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फीट और अपने पैरों को मारने लगती थी। कभी कभी वो यहाँ तक कि जमीन पर लेट जाती थी और पैरों को मारने लगती थी। हर पेरेंट्स soon found a teacher for her. उसके माता पिता को सुनिस जल्दी ही फाउंड मीन्स मिला क्या? अ टीचर एक अध्यापक एक शिक्षक एक शिक्षिका। फॉर हर उसके लिए एक टीचर मिला। उसे एक टीचर उनके माता पिता को एक टीचर मिल गया। और टीचर क्या नाम था? मिस सुलिवैन। मिस सुलिवैन ये किसी लड़की का नाम है, किसी टीचर का नाम है मिस सुलिवैन। अ यंग टीचर अ एक युवा शिक्षिका जो थी उन लोगों के माता पिता को मिली मिस सुलिवैन। promised to help Helen Keller to see the world. मिस सुलिवैन ने उन लोगों से वादा किया। प्रॉमिस्ड मीन्स वादा किया क्या? टू हेल्प वो मदद करेगी, हेलन केलर की मदद करेगी। टू सी द वर्ल्ड दुनिया को देखने में, दुनिया को देखने में वो हेलन केलर की मदद करेगी। इसका वादा मिस सुलिवैन ने किया। मिस सुलिवैन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवैन ने गेव मतलब दिया। किस क्या दिया? अ डॉल एक गुड़िया दिया। किसको? हेलन को। मिस सुलिवैन ने हेलन को एक गुड़िया दिया। शी स्पेल्ड द वर्ड डॉल विद हर फिंगर्स ऑन हेलेंस हैंड। उन्होंने डॉल की स्पेलिंग हेलन के हैंड के फिंगर से लिखवाई। शी स्पेल्ड द वर्ड डॉल। उन्होंने डॉल DOLL DOLL उसके फिंगर से हेलन के हैंड के हाथ के फिंगर से लिखवाया। इशारे से लिखवाया, कुछ चिन्ह से लिखवाया। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस। उन्होंने स्पेशल मतलब विशेष चिन्हों से शब्दों को अक्षरों को बनाया। शी मेड द लेटर उन्होंने अक्षरों को बनाया विद स्पेशल हैंड साइंस हाथों के चिन्हों से, हाथों के इशारे से उन्होंने कुछ विशेष अक्षर बनाए। हेलन कॉपीड हर टीचर। हेलन ने अपने टीचर की अपने शिक्षिका की नकल किया। एंड स्पेल्ड डॉल और स्पेलिंग लिखी, स्पेलिंग बनाई DOLL। हेलन केलर ने सबसे पहली स्पेलिंग जो सीखी वो स्पेलिंग सीखी DOLL। क्योंकि वो ना देख सकती थी ना ही सुन सकती थी, लेकिन शब्दों को जाने बिना वो आगे नहीं बढ़ सकती थी, कुछ भी सीख नहीं सकती थी। तो उसकी टीचर ने एक विशेष तरह के अपने हाथों से, अपनी उंगलियों के इशारे से, कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों से, संकेतों के माध्यम से उसको DOLL स्पेलिंग सिखाया। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज डूइंग। लेकिन डिड नॉट अंडरस्टैंड वो समझ नहीं पाई थी कि वॉट शी वॉज डूइंग वो क्या कर रही है। उसने स्पेलिंग तो बना दिया DOLL, लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी
कि वो क्या कर रही। द टीचर हेल्प्ड हेलेन टू स्पेल अ लॉट ऑफ वर्ड्स। उसकी टीचर ने हेलेन की मदद किया कई स्पेलिंग को जानने के लिए। बहुत सारे, लॉट ऑफ यानी बहुत सारी शब्दों के स्पेलिंग को जानने में उसकी मदद की। वन डे द टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उनकी टीचर ने क्या किया, हेलेन की टीचर ने क्या किया, उसके हाथ को बहते हुए पानी में रख दिया। एक दिन हेलेन की टीचर ने हेलेन के हाथ को, पुट हर हैंड, उसके हाथ को रनिंग मतलब बहते हुए पानी में रख दिया। शी स्पेल्ड वाटर, उन्होंने स्पेलिंग करी WATER वाटर। उसके हाथों को पानी में ले गई और स्पेल्ड किया, स्पेलिंग बनाया वाटर। हेलेन अंडरस्टूड, हेलेन समझ गई दैट वाटर मीन्स कि, दैट मीन्स कि वाटर मेंट समथिंग वेट, कि पानी मतलब गीला, कुछ भी गीला, इसका मतलब पानी। हेलेन समझ गई कि पानी मतलब कुछ भी गीला, जो गीला है वो पानी है। रनिंग ओवर हर हैंड, अपने ऊपर जो पानी उसने डाला उससे वो समझ गई कि जो गीला है वो पानी है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वो समझ गई, शी अंडरस्टूड, हेलेन समझ गई दैट कि वर्ड्स, शब्द सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस दुनिया में। हेलेन केलर समझ गई कि शब्द इस दुनिया में, इस संसार में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वर्ड्स कुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। उसे समझ में आ गया कि शब्द उसे सब कुछ बता पाएंगे, शी वांटेड टू नो, जो वो जानना चाहती है। शब्दों से वो सब कुछ जान सकती है, शी वांटेड टू नो, जो वो जानना चाहती है। क्लियर? हेलेन केलर became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. इसके बाद हेलेन केलर became मतलब हुई the first deaf, पहली, सबसे पहली deaf blind मतलब बहरी और अंधी व्यक्ति हुई, पहली व्यक्ति जो थी, जो बहरी भी थी और अंधी भी थी, उन्होंने BA की डिग्री हासिल की। BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, स्नातक की डिग्री, कला क्षेत्र में स्नातक की डिग्री पहली व्यक्ति थी हेलेन केलर जिनको ये डिग्री प्राप्त हुई। सामान्य लोगों को तो मिल ही जाती है, लेकिन पहली डेफ ब्लाइंड मतलब बहरी और अंधी व्यक्ति थी जिनको बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त हुई, मतलब BA की डिग्री प्राप्त हुई। क्लियर? समझ में आ गया सबको? ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया होगा इस लेसन को दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 2 बार 3 बार 4 बार देख लोगे तो ये पूरा लेसन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत ही मजेदार लेसन है। इसको 1 2 बार जरूर पढ़ लेना, देख लेना और अपनी बुक से एक बार पढ़ने की कोशिश करना और देखना कि आपको आया कि नहीं है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर देना। ठीक, और जितने भी फ्रेंड्स हैं पढ़ने वाले, अपने दोस्त हैं, उनको शेयर भी कर देना, उनको बता देना कि वो भी देख लें। ठीक, क्लियर? चलो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, अगले लेसन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना।